Hi guys, we'll be starting with law relating to torts today. Now, in law, wrongs can be classified in two parts. One is a civil wrong, and the other one is called as criminal wrongs. Now, civil wrongs are called as torts, whereas criminal wrongs are called as crimes. Now, the reason for this distinction is because the procedures are different completely. If it's a civil wrong, the civil procedure code will be applicable, and if it is a criminal wrong, you have something called as a CRPC that will be applicable. That's your criminal procedure code. If it's a civil wrong, then the matters go in civil courts where you have judges sitting in. Okay, you have judges. Whereas if a criminal matter is there, it will go up in the criminal court, and there the judges are actually called, the technical term is called as magistrate. Okay, if we go further into the distinction, the parties who are fighting, the litigating, okay, in civil wrongs it is called as plaintiff versus defendant. These are the litigating parties. So if I file a case on you, I will be the plaintiff, the one who files the civil case in the court, and against who has to defend himself is called as the defendant. In criminal matters, this will be called as the complainant versus the accused. जनरली यहाँ पे जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं वो प्राइवेट नेचर के होते हैं, रिलेटिवली लेस सीरियस के होते हैं. सो दीज आर एक्चुअली प्राइवेट रॉन्ग्स डन ऑन एन इंडिविजुअल. ओके, सो इंडिविजुअल के ऊपर ये रॉन्ग किया गया है. एंड criminal wrongs are considered as it's serious wrongs. It's considered to be a public wrong. When you do a crime, it affects the public society at large, where everybody gets scared. If there is a murder, extortion, dacoity, okay, any serious offenses on women, it affects everybody. So it's considered to be a public wrong. Here the complainant will actually be the state. The state takes action. Okay, so this is how wrongs are classified. You have to first see whether it is a big wrong, then it will be called as a crime, and all the procedures and everything will be followed of criminal procedure. Whereas if it is a relatively less serious matter, it is called as a civil wrong. Now civil wrongs की अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, पहले क्रिमिनल देखते हैं. क्रिमिनल इज वेरी सिंपल. वी कैन से एज मर्डर, then we have something called as extortion, then we have drugs, then we can have many other cases of crime, that is a war, terrorism, okay, any offenses with related to women. All of them are considered to be crime, serious, and all this will be in case and the state will take action. When I say a civil wrong, civil wrongs are relatively less serious. So I can talk as a breach of contract is a civil wrong. Another thing I can say as a relatively a trespass. सोचो कोई ट्रेसपास किया तुम्हारे लैंड के ऊपर, तुम्हारे पास में गांव की एक जमीन थी, उसके ऊपर कोई अनजाने में गलती से वो लैंड के ऊपर चल रहा है, तो यू कैन फाइल अ केस फॉर ट्रेसपास दैट दिस पर्सन हैज कम ऑन माय लैंड. ओके, इफ दे हैव कम फॉर थेफ्ट, रॉबरी, और कोई रॉन्ग इंटेंशन दिख रहा है तुमको, तो वो क्राइम हो जाएगा, थेफ्ट. So here the intention matters a lot, and intention can be determined from the act of the parties, the behavior, the circumstantial evidence, called as mens rea, is actually called as a guilty mind. Guilty mind, or I could say as a bad intention is required, okay, for a crime to happen.
नेक्स्ट इफ यू सी सिविल रॉन्ग के और एग्जाम्पल्स, इवन वी से समटाइम्स एक्सीडेंट्स, एक एक्सीडेंट हो गया है, कार एक्सीडेंट हो गया है, उसमें पर्सन को इंजरी हो गई है, तो इट कैन बी कॉल्ड एज अ सिविल रॉन्ग। नेक्स्ट वी कैन कॉल एज असॉल्ट, if you have used a minor force on someone, okay, so you have pushed someone in anger, it will be called as assault. All of these are relatively less serious and it will be civil wrongs. Now जो criminal wrongs होते हैं, how do you come to know कि ये offense जो है, गलती जो है, ये criminal में है या civil में है? इतना serious कैसे पता चलेगा? ये जो भी wrongs होते हैं ना, it will be mentioned in the Indian Penal Code, which is also called as a law of crimes. Okay, in law and all of this you will know in detail. Now let's start with this. Now just understand one more thing. Civil wrongs जो होते हैं उसके काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं. एक तो है हमारे पास में टॉर्ट, दूसरा सिविल रॉन्ग हो सकता है, यू कैन क्लासिफाई देम एंड कॉल देम एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब दोनों में डिस्टिंक्शन है. हम लोग ने पहले सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स में डिस्टिंक्शन देखा, अभी टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस देखते हैं. कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पार्टीज खुद एंटर करते हैं. सो द ड्यूटीज are imposed or created by parties themselves. So for example, me and you enter into a contract, so we will determine what is the duties of each other, और वो नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे. टॉर्ट क्या होता है? It is the duties are imposed by the law. Duties are imposed by, you could say, the law. For example, you should not trespass on someone's property. It is what? It is a duty imposed by law. You should not give any false statement of anyone. It's called as you should not defame anyone. So again, it is a duty imposed by the law. You should drive safely and should not cause accidents. So ये क्या है? ये वापस tort है. So this is created by law. तुमने किसके साथ में, कोई स्पेसिफिक पर्सन के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया है. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है टू नो वेदर इट इज अ क्राइम और अ सिविल मैटर? बिकॉज जो रिलीफ भी मिलेगा ना, द रेमेडी इन सिविल मैटर्स, कॉम्पेंसेशन विल बी गिवन. कॉम्पेंसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी ग्रांटेड. Whereas अगर क्रिमिनल रॉन्ग हुआ तो द पर्सन कैन गेट अ इम्प्रिजनमेंट और अ फाइन, और अगर जैकपॉट लगा तो बोथ. ओके, सो नाउ लेट्स गेट इनटू द चैप्टर. फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टॉर्ट? Tort is actually a French word. Now this is very important from MCQ point of view. Is a French word which means a wrong. It's actually derived from the Latin word which means टोटल. पब्लिक रॉन्ग्स जो होते हैं उसको हम लोग क्राइम बोलते हैं और उसके ऊपर स्टेट एक्शन लेता है. वेराज प्राइवेट रॉन्ग जो होते हैं उसको हम लोग टॉर्ट्स बोलते हैं. ओके, सो फ्रॉम नाउ यू टेल मी, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग और अ क्रिमिनल रॉन्ग? Civil wrong. Civil wrong. So tort is a civil wrong. Now again they just go on to say which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. तो अगर breach of contract है तो यहाँ ये वाले कैटेगरी में आ जाएगा, और इसके ऊपर अलग से ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर पार्टीज खुद अपना मेंशन करती है कि डैमेजेस कितना मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू एंड मी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड आई विल से दैट इफ आई डोंट गेट द गुड्स प्रॉपर्ली यू विल पे मी अ अमाउंट ऑफ सो एंड सो अमाउंट. सो दिस इज द डैमेजेस इज डिसाइडेड बाय द पार्टीज. सो अगर कुछ एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सक्लूसिवली मीन्स व्हाट, कंप्लीटली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ये कैटेगरी में आ जाएगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से चलेगा.
Okay, so civil wrongs is a wide term. It includes torts also, which law has imposed a duty, and if it is a parties have imposed a duty on each other, it will be called as contract. Okay, so section 2M of the Limitation Act 1963 states that torts is a civil wrong which is not exclusively a breach of contract. तो अगर breach of contract नहीं है तो it will be called as a tort. So it is an infringement of a right in rem. Now again, एक होता है right, let's see here, let's write here only. एक और distinction है right in rem. Now you tell me ये कौन सा होगा, ठीक है. एंड एक होता है right in personam. Right in rem means what? Rem means in public. You have a right against the public and you can take action against the public at large. Right in personam means what? You have a right against a specific person. This is a right against the world. मुझे बताओ, अगर तुम्हारा कोई पर्सनल झगड़ा हुआ है किसके साथ में और तुम्हारे साथ में ही डेफेमेटरी बात कर रहा है कोई, तो राइट इन रेम होगा या राइट इन पर्सनम? विल इट बी राइट इन रेम और राइट इन पर्सनम? पर्सनम. सो दिस इज अ सिविल रॉन्ग. Okay, so it is a tort. But if I say murder, extortion, terrorism, ये सब क्या होगा? Right in rem. So this will be called as a criminal wrongs. इसका मतलब क्या कि अगर कोई मर्डर कर रहा है तो we will say that you have affected the people at large. सबके लोगों के rights affect किए तुमने और स्टेट इसके ऊपर एक्शन रहेगा. अगर मैंने खाली तुमको गुड्स डिलीवर नहीं किया टाइम पे तो लोगों को क्या मतलब है? तो राइट इन पर्सन एम होगा, सिविल मैटर होगा वो. क्लियर? सो यहाँ पे दे रहे इट इज अ राइट इन रेम. देन कम्स जनरल कंडीशंस फॉर लायबिलिटी इन टॉर्ट्स. सो देर आर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर अ टॉर्ट टू हैपन. टॉर्ट होने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है. सबसे पहले एक रॉन्गफुल एक्ट होना पड़ेगा, कुछ तो गलत होना पड़ेगा. अगर गलत हुआ तो तुम्हें डैमेजेस होंगे, तो देयर हैज टू बी अ लीगल डैमेज टू यू. तो डैमेज भी हो गया तुमको, गलत तो हुआ ही, प्लस तुमको डैमेज भी हो गया. अब जब डैमेज हुआ तो ऑब्वियसली कोर्ट तुमको क्या देगी? थर्ड चीज, law will give you a legal remedy. So then law will provide you a proper remedy. It is stated that for every wrong there will be a remedy given by law. Clear? अब जो legal damage है इसके ऊपर 2 maxims है जो important है. One is damnum sine injuria and second one is injuria sine damnum. Now let's see what are these 2 maxims. ये important है. Firstly, हम लोगों ने देखा जैसे wrongful act है, कुछ गलत होना चाहिए, breach of your rights होने चाहिए, फिर legal damage होगा तुमको. तो अब legal damages के 2 cases है. Let's see which one. Damnum sine injuria. So damnum means a damage, or I could say simple word as a loss, and sine means without. Okay, and injuria means legal injury. Now ये जो था केस, उसका केस लॉ एक है which is called as Gloucester Grammar School case. ग्रामर स्कूल केस. अब इसमें क्या हुआ था, एक स्कूल थी, स्कूल के अंदर से प्रोफेसर्स निकल के कॉम्पीट करने लगे एंड दे सेट अप देयर ओन राइवल स्कूल, बिकॉज ऑफ विच ये ओरिजिनल स्कूल को लॉस होने लगा. सो कैन दिस स्कूल, द ओरिजिनल स्कूल,
file a case here, क्या ये केस एक्शनेबल होगा? Will the courts entertain this? No. So what happens when this school will go to the court? The court will say that yes, you got a damage हुआ आपको, no doubt, आपको loss हो गया, आपके सारे customers, school, students वो सब चले गए आपके. Now ये आपके चले गए, but आपका कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है. Everything was done lawfully. The people who left your school went in lawfully. Competition करना legally allowed है. So जब competition आता है, competition, so it causes you damage, but तुम्हें कोई भी legal in eyes of law कोई injury होती नहीं है. It is allowed. It's a fair competition that has happened. Therefore it is not actionable in court, means you cannot take action, and if there is no action, there is no relief. Clear है ना? So ये लोग ने केस लॉ भी दिया है, ग्लॉचेस्टर ग्रामर स्कूल केस. Then comes injuria sine damnum. Injuria means legal injury, sine means without, and damnum means damage. When I say damage, I mean loss. Okay. Then comes legal injury without damage. अब ये कैसे तुम्हारे लीगल इंजरी हो गई तुम्हें, बट कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ, बट इन आईज ऑफ लॉ देर इज अ, व्हेन आई से लीगल इंजरी मीन्स व्हाट, इन आईज ऑफ लॉ देर इज अ डैमेज. ओके, सो इसका केस लॉ था विच इज कॉल्ड एज एशबी वर्सेस वाइट. इन एशबी वर्सेस वाइट व्हाट हैपेंड? Ashby went to vote for her political party. White, the commissioner that time, did not allow her to vote. So it is also called as refusal to vote case law. In that what happened? Ashby could not vote. So she was really sad. But ultimately what happened? Her party won the case. Ashby's party won the case. Now question came up, can Ashby file a case in court? So it was argued that there was no real damage to her. उसको तो कोई भी डैमेज हुआ ही नहीं, लॉस हुआ ही नहीं, उसकी ही पार्टी जीत गई. But it was held that she was entitled to compensation because in eyes of law there was a legal injury, even though there was no damage to her, real damage to her. And if there is a damage, then the law will provide you a legal remedy. Clear? Then comes to the next one, concept of mens rea. Mens rea simply means as a guilty mind. Guilty mind means what? You need to have a bad intention. So bad intention is required in criminal cases. It is required in crimes. Means what? If let's say a doctor is trying to save a life of a person and doctor ends up killing the person, can the doctor be held liable? No. As a criminal, answer is no, because he had no bad intention. Clear? So this mens rea is required in criminal cases. If you cannot prove that the person didn't have guilty mind, then the person will be acquitted, will be released. तो जब तक के प्रूव नहीं हो सकता कि उसकी गिल्टी माइंड थी, उसका इंटेंशन था. अब ये कैसे पता चलता है? फ्रॉम द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फ्रॉम द आई विटनेसेस, फ्रॉम द एविडेंस एक्सेट्रा. देन वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन अ टॉर्ट एंड अ क्राइम. टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, whereas crime is a criminal wrong. Your crime affects the public at large, whereas this affects only the private individual. Your in tort अगर करोगे तो तुमको compensation मिलेगा, you'll get money, and in crime if you do, you can get convicted and you can get imprisoned and go behind bars. Then we've seen difference between tort and breach of contract. Now civil wrongs can be classified in tort and breach of contract. Torts क्या होता है?
लॉ इम्पोज करती है ड्यूटी. द ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय द लॉ. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट ट्रेसपास, you should not do rash and negligent driving, you should not defame anyone, you should not make any untrue statement. ये सब क्या है? Torts. You should not make verbal statements to anyone, you should not give threats to anybody. So that is a tort. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तुम और मैं मिलके लिखते कि तुम ये तारीख तक ये करोगे, मैं बोल रहा हूँ वो तारीख तक तुम वो करोगे. सो द पार्टीज फिक्स द ड्यूटीज. ड्यूटी इज फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. नाउ काइंड्स ऑफ टॉर्ट, मार्क करो इंपॉर्टेंट. सबसे पहले है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी. So the first one is called as strict liability. So there are three important liabilities that you need to know. First is your strict liability, second is your absolute liability, and third is your vicarious liability. Strict liability is called as a no fault liability. Now इसका रूल क्या है समझते पहले. Okay, it was first laid down in Rylance versus Fletcher case. ये जो प्रिंसिपल था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, राइलेंस वर्सेस फ्लेचर. इसमें क्या बोला? दैट इफ एनी पर्सन ब्रिंग्स और स्टोर्स एनी डेंजरस सब्सटेंस और एनिमल, he brings it at his own peril. Peril means what? Risk. If it escapes and causes damage to another, he will be held responsible. तो ये केस में हुआ क्या था कि राइलैंड था, लेट्स से दिस वाज राइलैंड. राइलैंड मेड अ reservoir. He made a reservoir and entire water was there, and he stopped it in front of Fletcher's place. Fletcher उसका नेबर था, उसके घर के पास में आके वो रेजर्वायर उसने रोक दिया. To do this work, Ryland appointed a independent contractor. एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया. ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने काम अच्छे से नहीं किया. यहाँ पे थोड़े वुडन शैफ्ट्स थे, ओके, वुडन प्लैंक्स थे जो उसको हटा के फिलअप करना चाहिए था. ही मिस्ड इट आउट. सो व्हाट हैपेंड? वाटर वेंट फ्रॉम योर, इट एंटर थ्रू द वुडन प्लैंक एंड देन डिस्ट्रॉयड द प्लेस ऑफ फ्लेचर. नाउ टेल मी, फ्लेचर विल फाइल अ केस और नो? सो फ्लेचर filed case on Ryland that you brought in such a dangerous thing and you stopped it at my place. It released, escaped and then caused me damage. So tell me one thing, should Ryland be held responsible? Yes or no? Yes. Yes. So what happened in the case? Ryland had erected a reservoir. So who erected? Ryland. उसकी वजह से वो बर्स्ट हो गया. दो ही अपॉइंटेड अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. हु गॉट द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर? राइलैंड. तो सब फॉल्ट किसकी आएगी? राइलैंड की. सो लेट्स सी. एंड देन ही वाज मेड टू पे फॉर द this. It was also said in the same case in Reeds versus Loyan. It was explained 4 conditions are there for this rule. ये rule apply होने के लिए 4 conditions है, which is called as bend. So it should have been brought by that person. It should have been brought by that person. It should have escaped. It should be non-natural use of land. When I say non-natural use of land means it should be some unusual activity that you are doing. It should be dangerous. So in Rylands versus Fletcher, facts में Ryland erected reservoir, okay, which was bursted and destroyed Fletcher's house. Fletcher filed case on
Ryland. Here, court laid down the rule that whoever gets dangerous substance or thing or animal, okay, and it escapes, then such person only should be held liable. Such person will be strictly liable. सर में आई है. अब इसके लिए कंडीशंस रखे थे. सो व्हाट वर द कंडीशंस? Was bend. Firstly, he should have brought it, it should have escaped, it should be dangerous, and it should be non-natural use of land. When I say non-natural use of land means what? It should be unusual act, something which is uncommon and it has damaged you. अब ऐसे केस में Ryland was in immense trouble because he will have to pay compensation. But the rule also provided few exceptions. Exceptions means what? Certain defenses where Ryland can take and get out of it. So if I was Ryland's lawyer, I'll be reading this. सबसे पहले, if I can prove that it was plaintiff's consent was given, मतलब फ्लेचर ने खुद कंसेंट दिया था, वो केस फाइल कर रहा है, उसने खुद मुझे बोला था तू रेजर्वॉयर बना तो मैं बच जाऊंगा, डिफेंस है मेरा. ये एक्सेप्शन है रूल. सेकंड, इफ आई कैन प्रूव दैट द थर्ड पार्टी का एक्ट था, थर्ड पार्टी डिड सम एक्ट, इट वाजंट माय फॉल्ट, सम थर्ड पार्टी ट्राई टू डू दिस एक्ट. नेक्स्ट, इफ आई ट्राई टू प्रूव दैट इट वाज एक्ट ऑफ गॉड, ओके, दैट it was due to heavy rains, it was something beyond the person's control. Then fourth, if I try to prove that it was a statutory duty. Statutory duty means what? That it was a governmental duty. Like for example, government sets up reservoirs, government act था, तो उसके ऊपर कोई केस, गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं कर पाओगे. अगर गवर्नमेंट ने रेजर्वोयर बनाया और वो फट गया तो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. नेक्स्ट, फिफ्थ, if I can prove it was natural use of land, कि everybody is doing it, it is not dangerous, it is something which is very common, then I can get out of it. Clear है ना? अब ये अपना था strict liability. अब Ryland वर्सेस फ्लेचर तुमको लग रहा है कि इंडियन केस लॉ है? ये Ryland वर्सेस फ्लेचर तुमको इंडिया के लोग लग रहे ये लोग? No. So these are all England के cases. Now ये क्या हो गया कि कुछ भी ऐसा हो रहा था, when we had imported this and we were also using this law in India, that time what was happening, जब भी कुछ भी ऐसा होता था, every time people used to go and say defenses, lawyers ये ले लेते थे, lawyers will come and look at the defenses which can save people like Ryland, and they were always taking protection of this act of God. कुछ भी होता था, they used to say अरे beyond the act control. So ये कभी हुआ था? There was one case of oleum gas leak. Oleum gas leak हुआ, many people died. Again the lawyers came in and they said कि act of God. Again after oleum gas leak there was another one called as Bhopal gas tragedy. So first was Bhopal gas, then came oleum. So Bhopal gas tragedy हो गया. Again many people died. Again the lawyers started saying act of God. So the Indian court started saying that ये जो रूल है वो इंग्लैंड का है, अपने इंडिया के लोग है ना हर टाइम ये एक्ट ऑफ गॉड कर करके ये लोग बचते रहेंगे. We wanted to make it super strong. So what happened? We kept the strict liability, but we said एक काम करते, जो भी exceptions है ना निकाल ही दो. Don't give any exceptions. Means today if I bring any dangerous substance, animal or thing, I will be absolutely liable. Lawyers के पास में कोई defense ही नहीं होगा. Now tell me, after doing this people will get serious or no?
People will start taking serious action. They will start making water, earthquake proof, everything. They will start taking all the measures possible because they know कि अब तो कोई डिफेंस ही नहीं बचा है. सो ये जो रूल था, ये दोनों ही केसेस कोर्ट में किसने फाइल किया था? एक बंदा था जिसका नाम था MC मेहता. उसने केस कर दिया ऑन यूनियन ऑफ इंडिया दैट प्लीज चेंज द लॉ. ओके, so then after that they said let's change the law, and strict liability is a England case. It doesn't apply in India. For India we had to modify it and called it as absolute liability. Okay, this happened in MC Mehta versus Union of India, and this is the case of India where the same thing applies of strict liability. Only thing what is removed from here, the exceptions part. Clear? So let's see from the module. So these were the exceptions that has been removed in your MC Mehta versus Union of India. Then came vicarious liability. Now vicarious liability क्या होता है? Firstly, can I be held liable for what my dad has done? Can a person be held liable for the act of another? No. So ये केस में क्या होगा? A person is normally not held liable for fault of another. Agreed? किसी और की गलती के लिए मेरे को थोड़ी हेल्प रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो. बट इन सर्टेन केसेस अ पर्सन कैन बी हेल्ड liable for fault of another. That is called as your vicarious liability. कोई और गलती करेगा और बिल तुम्हारे ऊपर आएगा. लेट्स सी कैसा होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का. तुम मुझे बताओ, अगर तुमने कोई ड्राइवर को रखा है, ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए, so let's say you have appointed a person to a driver to drive the car. So there is a driver and you are the owner, and this driver went and crashed into someone else's car. Who will be held responsible? The driver or the owner? किसको पकड़ेंगे हम लोग? ड्राइवर को पकड़ेंगे कि पैसा भरो, दूसरी गाड़ी को आपने जो ठोक दिया, उसने बाइक को ठोक दिया. तो विल यू कैच द ड्राइवर और द ओनर? ओनर. दो द मिस्टेक, द फॉल्ट वॉज ऑफ ड्राइवर, बट लायबिलिटी किसकी होगी? ऑफ ओनर. दिस इज कॉल्ड एज योर वाइकेरियस लायबिलिटी. ना इसका रीजन दे सेड ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? Why is this law vicarious liability रखा क्यों गए? Why are we making the owner liable? प्रिंसिपल एजेंट की बात करें, गलती एजेंट कर रहा है, पकड़ किसको रहे हैं? प्रिंसिपल को. गलती सर्वेंट कर रहा है, पकड़ किसको रहे हैं? मास्टर को. क्यों ऐसा? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अबिलिटी टू पे. हु कैन पे? किसके पास में पेमेंट कैपेसिटी ज्यादा होगा? सर्वेंट के पास के बॉस के पास? बॉस के पास. सेकंड, हु सिलेक्टेड? अबिलिटी टू सिलेक्ट द ड्राइवर. तो सिलेक्शन किसने किया? ये एजेंट का, सर्वेंट का, मास्टर. थर्ड, इसमें क्या होगा? दैट act done through another is considered as act of self. Act done through another is considered as act of self.
तुम्हारा ही एक्ट काउंट किया जाएगा, तो काम तो तुम्हारा था. सो अगेन, so you have your principal and agent. So if the agent make mistake, who will be held responsible? The principal. This mark karo important, they can ask you this. What does this maxim mean? It means he who acts through another is acting himself. मतलब मैं किसी और के थ्रू काम करा रहा हूं तो इट विल बी अज्यूम कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं. क्लियर है ना? देन इवन पार्टनर्स, अगर एक पार्टनर काम करेगा देन द अदर पार्टनर्स कैन ऑल्सो बी हेल्ड लायबल और नो. सो इन पार्टनरशिप फर्म्स द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और अगर एक पार्टनर गलती करेगा ना तो दूसरे पार्टनर्स के ऊपर भी लायबिलिटी हो जाती है. Then master servant, if the servant makes the mistake, who will be held responsible? The master. Now again, employer and independent contractor. Normally employer जो है उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया. Who should be held responsible अगर गलती होगी तो? So again they are saying that the employer should be held responsible because employer can control the work of the contractor. Right or wrong? Select किसने किया कॉन्ट्रैक्टर को? If you act done through another is considered as act of self. काम तो एम्प्लॉयर का हो रहा था. अब दूसरा देखते हैं, एम्प्लॉयर ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया. ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर था. When I say independent contractor means what? He operates, he works by himself. No instruction from the employer is needed. तब बोल रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं. अगर एम्प्लॉयर ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, who has full control on his work, he doesn't listen to his employer, independent contractor. In strict liability, किसकी हम लोग बोल रहे थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस थे, डेंजरस सब्सटेंस के केसेस थे, तो हु वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? कैन यू टेल मी, रिलेटेड विद राइलेंस केस, हु वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, द एम्प्लॉयर और द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर? किसको पकड़ा था? Employer was held responsible if it is a dangerous substance. But if it is not dangerous, okay, in all other cases it will be the independent contractor who will be liable. समझते हैं? अगर डेंजरस सब्सटेंस हुआ तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई होगी, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या बोल रही है कि जो लेके आया है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट अगर डेंजरस सब्सटेंस नहीं है, नॉर्मल रूटीन काम है, तो एम्प्लॉयर बोलेगा भाई उसका काम है, उसको करना चाहिए था, इंडिपेंडेंट है, वो फ्रीली काम कर सकता है, तो उसको पकड़ो ना, मेरे को क्या पकड़ते हो? एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये तो देखो ये डेंजरस का तो क्लियर हो गया है. बट अगर डेंजरस नहीं है, सोचो यहाँ पे मुकेश अंबानी है. मुकेश अंबानी कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करता होगा, यस और नो? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट कर रहा है. सोचो उसने एक अपॉइंट किया एक नॉर्मल ब्रिज बनाने के लिए, जो डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉर्मल फीचर है ब्रिज बनाने के लिए, और ब्रिज में कुछ गड़बड़ हो गया, किसको कुछ लग गया, तो मुकेश अंबानी को पकड़ना चाहिए कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना चाहिए? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज अ बिग गाय हिमसेल्फ. वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास में खुद के लोग हैं, खुद का, ही डजंट इवन आस्क, doesn't work under the instruction of the employer. In such cases, when it is not dangerous, the independent contractor will only be held liable. तुमको इतना डिटेल में नहीं आएगा, so don't worry. Then comes liability of acts of servants. We've seen. Then we have this wrongs. Can even the state be held responsible for vicarious liability?
तुम सोचो अगर BEST बस है, ठीक है, और वो बस ने कोई इंसान को एक्सीडेंट कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए? यस और नो? हु शुड पे द कॉम्पेंसेशन, द ड्राइवर और द गवर्नमेंट? Government. So again the government pays compensation for all these accident cases. Okay, तो जब भी यहाँ पे है तो दे विल पे. नेक्स्ट इज रॉन्ग अगेंस्ट पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक एक करके देखते हैं. पहले बैटरी. ये क्या पर्सन के ऊपर गलती हो, मतलब पर्सनल हार्म, समवन इज टचिंग यू, समवन इज हिटिंग यू, समवन इज इरिटेटिंग यू, तो ये पर्सनल रॉन्ग्स हो रहे हैं. देखते हैं. सबसे पहले बैटरी. बैटरी इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट. इट इज कॉल्ड एज अ बैटरी. अब मुझे बताओ, अगर इस बंदे को हम लोग जाके मार रहे हैं, वी ऑल ट्राई टू बीट हिम अप, वी पुल हिज ईयर्स, ओके, एंड वी इंजर हिम, उसका एक कान दुख रहा है. नाउ टेल मी वन थिंग, क्रिमिनल रॉन्ग तो नहीं है, इतना बड़ा कुछ इंजरी नहीं हुआ है. इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ बैटरी. सो देर इज अ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट हिज कंसेंट. बट यू टेल मी, अगर ये बॉक्सिंग मैच में लग गया उसको, तो इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी एन एक्ट ऑफ बैटरी? No, because it was with his consent. When you enter in boxing, they make you sign a certain document. समझ में आया? बैटरी एक्चुअली किसी को मारना. नेक्स्ट, असॉल्ट. असॉल्ट क्या होता है? थोड़ा बिफोर फाइटिंग थोड़ा हीटेड एक्सचेंज होता है. असॉल्ट इज एन एक्ट where there is a apprehension. It creates a apprehension in the mind of the plaintiff that there is going to commit a battery on him. So assault में क्या होता है? There is no use of force. Actual मारना होता ही नहीं है. There is just a apprehension that force will be applied. That force, which I am calling as battery, will be applied. ये तुमने ज़्यादातर इंडिया में झगड़े ऐसे ही होते होंगे, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मारूंगा मैं, इधर आ. दे डू दैट और नो? यू कम वेरी क्लोज एंड ऐसे तुझे इतना मारूंगा, तो ये क्या हो गया? और मार रहे नहीं हो तुम, तो भी किस्म का रॉन्ग हुआ है कि नहीं? इफ समवन इज ट्राइंग टू बुली यू, दे डोंट हिट यू, but they create a mindset, a perception, a atmosphere of threat that yes, I might be hit. Then it amounts to assault. Which is worse? Assault is worse or battery? Battery obviously. पहले assault होता है, थोड़ा धमकी होती है, फिर बाद में assault होता है. तो assault I can call as a mere threat. Okay, then comes bodily harm. Bodily harm क्या होता है? It is a willful act, मैं जानबूझ के कर रहा हूं, where it is to cause a physical harm to the plaintiff. In fact, physical harming him. So it is a act or a statement of the defendant which causes physical harm to the plaintiff. प्लेंटिफ मतलब क्या? कंप्लेनेंट इन क्रिमिनल मैटर, सिविल मैटर में प्लेंट. अब मुझे बताओ, खाली मेरे स्टेटमेंट से किसको हार्म कैसे हो सकता है? आई जस्ट मेक अ स्टेटमेंट और किसी को फिजिकल हार्म हो गया, कॉजिंग फिजिकल हार्म टू समवन. ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लाइंड पर्सन मेरे पास में आया, मैं जानता हूं कि वहां पे गाड़ी आ रही है और वो मुझे पूछ रहा है कि क्या मैं आगे जाऊं, तो मैं उसको बोल रहा हाँ जाइए जाइए,
जाइए, एंड देन द कार हिट हिम. सो डोंट यू थिंक इट वॉज माई स्टेटमेंट विच कॉज्ड हिम फिजिकल हार्म? कि मुझे पता है कि आगे खाई है, फिर भी मैं उसको बोल रहा हूँ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, तो मेरे खाली स्टेटमेंट से किसी को फिजिकल हार्म हो सकता है. सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ बॉडीली हार्म. नेक्स्ट इज फॉल्स इम्प्रिजमेंट. फॉल्स इम्प्रिजमेंट क्या होता है? फर्स्ट इज आई restrain, bring in a total restraint of a person without lawful justification. Total restraint without lawful justification. Imagine if we see who's your favorite actor? Let's say there is a really cool guy who's come up, Hrithik Roshan. You like Hrithik Roshan? Now Hrithik Roshan came, and then we like him so much we locked him in a room. We say हम आपको देखेंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, मोटिवेशन देंगे, आप जाओगे तो हमारा मोटिवेशन कम हो जाएगा, and we don't let him go. Can he file a case on us? Yes, he will file a case of false imprisonment. He said मेरे को रोक दिया था चारों दिशा से, total restraint, I could not get out, there is no outlet only, and without any lawful justification. But मुझे बोलो कि अगर मैं कोई थीफ आया था, थेफ्ट में मैंने किसी को पकड़ा, और जब तक कि पुलिस नहीं आती है उसको हम लोग ने कमरे में बंद करके रखा था, तो क्या हमारे ऊपर केस हो सकता है? नो, बिकॉज इट वॉज विथ लॉफुल जस्टिफिकेशन था, उसका रैशनल लॉजिक था कि वो चोर था, उसको भाग जाएगा नहीं तो पुलिस आने तक उसको पकड़ के रखा था. तो किसी की भी पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी ऑफ मूवमेंट ऐसे ही रोक नहीं सकते जब तक कि तुम्हारे पास वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं हो. देन केम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. नाउ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? मैलिशियस मीन्स व्हाट? Malicious, the word itself, bad intention. It was bad intention. Prosecution means case. तो तुमने किसके ऊपर ऐसे ही उसकी नाम खराब करने के लिए केस कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, I'll give you an example. अरविंद केजरीवाल, he filed a case on मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज. ना जैसे केस फाइल किया, रिलायंस के शेयर प्राइस को क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा. कम. सीधा क्रैश हो गया उसका प्राइस. पता नहीं क्या जजमेंट आएगा, और सीधा क्रैश हो गया. लेटर ऑन इट वॉज फाउंड आउट दैट देयर वाज नो केस ऑन रिलायंस. एवरीथिंग रिलायंस वॉज गिवन अ क्लीन चिट. तब मुझे बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉस हुआ कि नहीं? मॉनेटरी लॉस. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, अभी इलेक्शन आ रहा था इसलिए उनका बैड इंटेंशन था और उसने केस कर दिया, एंड दिस पर्सन वॉज गिवन अ क्लीन चिट. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी केस करेगा ऑन अरविंद केजरीवाल, एंड दे विल आस्क फॉर व्हाट? कॉम्पेंसेशन. और किस हेडिंग के अंदर केस करेगा वो? कि आपने मेरे ऊपर एक फेक केस डाला था, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया था, फेक केस डाला था मेरे ऊपर. सो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन्स अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अनदर. तो इसने इसके ऊपर एक केस फाइल किया था विदाउट एनी कॉज, रीजन, एनीथिंग, और ये टर्मिनेट हुआ था ऑन इन फेवर ऑफ दिस अदर पार्टी, एंड विच कॉज डैमेज ऑफ रेप्यूटेशन, पर्सनल लिबर्टी, प्रॉपर्टी टू दिस अदर पर्सन. देन लॉ गिव्स दिस पर्सन अ राइट टू फाइल अ काउंटर सूट इन द फॉर्म ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड आस्क फॉर मनी इन थॉट. क्लियर? फिर आता है नर्वस शॉक. इफ इमेजिन you've seen all this scare, where they scare people.
Have you ever scared people in the dark? In dark or in villages? Have you done that? So अगर तुम सोचो किसको तुम डरा रहे हो and that person fell ill, went to the hospital, so that person can then file a case on you कि बॉस, ये तुमने एक मूवी देख, ये आता था शो पहले MTV बकरा, लोगों को उल्लू बना देते थे, डरा देते, ओके। और एक इंग्लिश शो भी आता था स्केयर टैक्टिक्स, आई डोंट नो वेदर यू सीन इट। ऐसे अलग अलग शोज आते हैं। अब ये क्या होता है, नर्वस शॉक हो गया किसको, सो दैट पर्सन कैन नाउ लेटर ऑन फाइल फॉर कॉम्पेंसेशन कि आपने मुझे डराया, ओके, विच हैज नॉट कॉज, इट इज नॉट बाय फिजिकल इम्पैक्ट, मुझे तुमने कोई बैट से मारा, हाथ से कुछ नहीं मारा, कुछ स्टिक स्वॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं मारा, बट मियरली बाय गिविंग मी अ शॉक। क्लियर है ना? सो इमोशनली तुमने किसको बोल के डिस्टर्ब कर दिया। नेक्स्ट इज डेफेमेशन। डेफेमेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ अटैक ऑन समवन्स रेप्यूटेशन। इसके दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहली बात, एक फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, एंड सेकेंडली दैट फॉल्स स्टेटमेंट शुड बी ऑफ द इफेक्ट दैट कॉजेज लॉस ऑफ रेप्यूटेशन टू यू। देन यू कैन से कि तुम्हारा डिफेम हुए हो, तुम्हारा इज्जत खराब हुई है। अब डेफेमेशन कैन बी डिवाइडेड इन टू केसेस, वन इज लाइबिल और स्लैंडर। सी, दो हेड्स में है इंपॉर्टेंट, लाइबिल एंड स्लैंडर, मार्क करो इंपॉर्टेंट। लाइबिल, स्लैंडर इज बाय वर्ड्स, ओनली बाय वर्ड्स, और लाइबिल क्या होता है, इट इज इन सम परमानेंट फॉर्म रिकॉर्ड हो चुका है, परमानेंट फॉर्म में स्टोर हो चुका है। नाउ यू टेल मी, अगर मैं खाली जाके, लेट्स से देयर आर दीज टू गर्ल्स, ओके, दे मीट ईच अदर, अब दे से यू आर सच अ गुड फ्रेंड, ये वो सब मिलते अच्छे से, फिर थोड़ा दूर गए, फिर बोलेंगे व्हाट वाज शी वेयरिंग, सो फेक। अब ये जाके दूसरों को खाली फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे कि शी इज सो फेक, शी स्पोक बैड अबाउट यू, शी इज रियली नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। अब ये बोले ही जा रहे, तो ये कौन सा हो गया, लिबिल या स्लैंडर? स्लैंडर, खाली वर्ड से वो कर रहे। अब दूसरा क्या होता है, एक होता है लाइबिल। सोचो एक कार्टूनिस्ट कितने होते हैं पता है, कार्टूनिस्ट, और यू कैन से न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल डाल दिया, न्यूज़पेपर आर्टिकल, तो या कोई न्यूज़ में चैनल घुमा रहे, टेलीविजन शो पे, दे आर सेइंग दैट सो एंड सो इज अ करप्ट पर्सन, इज अ ड्रगिस्ट, इज द एवरीथिंग XYZ, और रियलिटी में कुछ है ही नहीं। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा जिसमें तुम उसको प्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में, मे बी इन एनी कॉन्क्रीट फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, विजुअल, रीडिंग, एनीथिंग। तो स्लैंडर इज ओनली अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट in a transient form. Transient means a temporary form, such as words or gestures, whereas slander is in the form of, whereas libel in the form of any permanent form like written words, pictures, caricatures, cinema, effigies, statues, etc. Clear? So that is important. Then remedies in torts. जो remedies है can be divided in two parts. One is judicial, that is you get it through courts, and the other one is non-judicial, courts out of court relief, जो तुम खुद ही अपना रिलीफ कर सकते हो by your own self. Let's see what is this. सबसे पहले कोर्ट क्या रेमेडीज दे सकती है? सबसे पहले you would be able to say damages, that is पैसा वापस देंगे. Damages is the most common relief. Second is injunction. Injunction means court can give a stop ऑर्डर, स्टॉप नोटिस कि भाई अभी आप ये ऐसा मत करिए आगे से. सो दे कैन स्टॉप अ पार्टी. फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डर इज मेकिंग अ इलीगल प्रीमाइसेस, illegal floor, or injunction can be ordered that now you will not make any further floors. Specific restitution. Restitution मतलब क्या?
रिस्टोरिंग ऑफ प्रॉपर्टी. सो सपोज अगर किसी ने तुम्हारा मोबाइल रख लिया है, ओके, या तुम्हारी प्रॉपर्टी किसी के पास में है, या तुम्हारा मूवेबल प्रॉपर्टी किसके पास में है, तो तुम कोर्ट के पास में जा सकते हो कि इसने मेरे गोल्ड मेरा गोल्ड उसके पास में दे नहीं रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि भाई दे देना, रेस्टिट्यूट कर दे, रिस्टोर कर दे उसको प्रॉपर्टी. तो उस पार्टी को देनी पड़ेगी, नहीं तो पुलिस जाएगी उसके घर पे. तो ये सब कोर्ट ऑर्डर कर सकती है. नॉन जुडिशियल रेमेडीज क्या है? बहुत ही सिंपल, कोर्ट के पास में नहीं जाने की जरूरत है, खुद ही रेमेडी कर सकते हो. सबसे सिंपल है सेल्फ डिफेंस. सेकेंड है, अगर कोई तुम्हारे घर में आ रहा है तो तुम प्रिवेंट कर दो ट्रेसपास. अगर कोई तुम्हारे लैंड में आ चुका है तो तुम री एंटर कर सकते हो. रिकैप्शन ऑफ गुड्स. रिकैप्शन मीन्स यू टेक द गुड्स बैक. ओके, टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स. अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस. अबेटमेंट मीन्स व्हाट? स्टॉपिंग द न्यूसेंस. अगर कोई भी किस्म का न्यूसेंस है, कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है, तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो तुम खुद भी जाके उसको स्टॉप कर सकते हो. कोई फायर बर्न कर रहा है और तुम्हें न्यूसेंस लग रहा है, यू कैन गो एंड स्टॉप इट बाय गिविंग अ नोटिस और इन्फॉर्मिंग देम. डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट. सो इट्स अ वेरी बिग वर्ड, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है. अगर डिस्ट्रेस मीन्स व्हाट? यू आर वेरी सैड. वाई? बिकॉज इमेजिन अ कैटल हैज कम. अब ये इधर इंडिया का, मतलब यू कुड से अर्बन एरियाज का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. रूरल एरियाज में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं ना, चैटल या ये जो भी ब्रीड्स एनिमल्स रहते हैं, वो लोग जाके किसी की खेती खा लेते हैं, तो डैमेज हो जाता है फार्मर्स को. तो फार्मर्स क्या करते हैं, ये कैटल को पकड़ के रख लेंगे. वॉट एवर दिस कैटल इज देयर, उसको पकड़ के रख लेंगे और उसको बोलेंगे हम जाने नहीं देंगे टिल आवर मनी इज गिवन. सो सी, यू मे लॉफुली सीज एनी कैटल. ये कैटल को तुम पकड़ लोगे और इसके पास से तुम ओनर को बोल सकते हो जब तक कि मेरे को मेरा पैसा नहीं मिलेगा डैमेज का, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा. ओके, विच इज अनलॉफुली ऑन योर लैंड, यू कैन होल्ड इट अंटिल द कॉम्पेंसेशन इज पेड फॉर द डैमेज. एंड दैट्स इट, वी आर डन विद द चैप्टर. देन टॉर्ट इज अ टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग. लॉ ऑफ टॉर्च हैज डेवलप थ्रू जुडिशियल डिसीजंस. अलग अलग केसेस के थ्रू डेवलप हुआ है. Law of torts deals with defamation, it also deals with trespass, it also deals with negligence. So all of the above. In torts, okay, in torts the remedy is unliquidated damages. Damages मिलते हैं. Unliquidated means what? You don't know how much amount, court will determine the amount. Where the master is held liable for the act of his servant, it is called as vicarious liability. And that is it, we are done with the chapter.